السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بتوفیق اللہ۔ آج کا حدیث کا سیشن ہے اور ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ حالیہ حالات حاضرہ کی تناظر میں ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز علامات الساعہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ سے، اور اس کو ہم نے آج کے دور کے لحاظ سے خاص طور پہ کیا ہے کیونکہ اس وقت فلسطین اسرائیل کرائسس ایک دم چلا ہے، سب لوگوں کی طرف کا یہ کہنا بھی ہے اور خوف بھی ہے کہ جو بیچارے مجبور ہیں اور مظلوم ہیں وہ مہدی کی آمد کے انتظار میں ہیں، اور جو ظالم ہیں وہ دجال اسٹیج تیار کر رہے ہیں، اور دجال، مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، مسجد الاقصی، یہ سب کا سب آج کل کے ہاٹ ٹاپک ہیں۔ اور اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ سوشل میڈیا پر فلڈڈ یہ والی معلومات، اور اس کا ان کو جاننے کا ذریعہ سب سے بہتر ذریعہ سوائے حدیث کے کیا ہو سکتا ہے۔ ویسے عجیب بات یہ ہے کہ علامات الصاعق کے اوپر بہت سارا کام جو ہے اس میں بھی ہوا ہے، تورات سے، انجیل سے، زبور سے بھی بہت ساری جو ہے وہ چیزیں اس سلسلے، اور یہ مہدی علیہ السلام کا تصور اور دجال کا اینٹی کرائسٹ کے لیے اور یہودیوں کے لیے مسایا، حتیٰ کہ ہندوازم تمام مذاہب اس کی کوئی نہ کوئی شکل موجود ہے، اور تمام مذاہب جو اس بات پر ایگریڈ ہے کہ ایک بہت لمبے آپریشن کے دور کے بعد جو ہے ایک گولڈن پیریڈ آنے والا ہے، اور اس میں بہت ساری جگہوں پہ ڈائریکٹ جو ریفرنسز بھی جیروسلم کو اس کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ، تو ہم نے یہ سوچا کہ ماشاء اللہ حدیث پڑھ ہی رہے ہیں کہ اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں علامات الساعہ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جب ہم پڑھیں گے ایمان کے بارے میں، صلاح کے بارے میں، موت کے بارے میں، اور بہت ڈھیر سارے جو حدیث کے پاپولر ٹاپک ہیں، تو انشاءاللہ all the situation around us۔ تو لائیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے یہ لیا ہے کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی، یہ ہم نے والیوم 3 سے لیا، انشاءاللہ ہم اس کا جو بھی شیئر کر دیں گے، اور حدیث نمبر ہے 3565 3865۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ عن عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، قال جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلسا، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے، لہو ایک مجلس، یعنی اللہ کے رسول ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، فاتاہ جبریل علیہ السلام، ان کے پاس آئے جبریل علیہ السلام، فجلس بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضعا کفیہ علی رکبتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جبریل آئے اور وہ بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور کیا کیا کہ انہوں نے بیٹھ کے اپنی جو ہتھیلیاں تھیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو رانیں تھی نا ان کے اوپر رکھی، جیسے ایک بندہ جو ہے نا، آپ سمجھے کہ گھٹنے سے گھٹنا جوڑ کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتا ہے اور اپنے ہاتھ ان کے جو ہے نا سامنے ران دیتا ہے۔ فقال یا رسول اللہ، اور کہا اے اللہ کے رسول، حدثنی الاسلام، بتائیے ذرا مجھے اسلام کیا ہے۔ قلت، تو میں نے کہا، فذکر الحدیث بطولہ وفیہ، تو اور انہوں نے اس کا کہ حدیث کی پوری لمبائی بتا دی اور جو اس کے اندر جو اس کے بیچ میں تھا، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ حدیث کون سے والے باب میں استعمال ہوئی ہے، یہ جو ہے دوسری جگہوں پہ پوری تفصیل کے ساتھ استعمال کی ہے، یہی وجہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہاں پر اس حدیث کو جو ہے نا شارٹ اینڈ کر دیا ہے۔ بہرحال چلیے پہلے پوری حدیث پڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ہمیں کیا سمجھاتی ہے۔ فقلت، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر پوری حدیث بتائی، اس کی پوری طوالت کے ساتھ۔ قال یا رسول اللہ، تو کہا اے اللہ رسول، فحدثنی متی الساعہ، ذرا مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ خمس من الغیب لا یعلمون الا ہو، اللہ پاک ہے 5 چیزیں غیب ایسی ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ عنده الساعہ، اللہ کے پاس جو ہے وہ قیامت کا علم ہے، سورہ لقمان کی یہ تقریباً آخری آیت ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت۔ ولیکن ان شئت حدثتک بمعالم، لیکن اگر آپ چاہیں، اب اللہ کے رسول جبریل کو کہہ تو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے
اس की निशानियों के बारे में दून ज़ालिक, यानी क़यामत का वक्त तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन उसकी निशानियां बता। काला अजल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जिब्रील ने कहा ठीक है अल्लाह के रसूल, ऊपर चलिए, ऊपर चलिए, लाइक नीचे आइए, सॉरी या अच्छा जी। फहद्दसनी, तो उन्होंने क्या किया कि बताया, फहद्दसनी मुझे बताई, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इदा रअयतल अमता वलदत रब्बतहा औ रब्बहा, जब तो देखे कि एक लौंडी जो है वो अपनी मालकन को या अपने मालिक को जानती है, वरअयत अस्हाबत शाई यतखावलूना बिलबुनियानी, और या तू देखे कि ये जो है ना अपने जो ठहरिए नंगे पाँव वाले जो है ना, नंगे पाँव वाले जो है ना, असहाब शादी बकरियों वाले, ठीक है, बकरियां चराने वाले जो चरवाहे हैं, या तत्फावलूना बिलबुनियानी, और मुकाबला करना शुरू कर देते ऊंची ऊंची इमारतों में, वरअयतल हुकला तिल जाइल आलता कानू रुऊसुल इंसिन, और तो क्या आप देखें कि नंगे पांव वाले जो हैं, नंगे भूखे और फकीर लोग जो हैं वो लोगों के सरदार बन जाएंगे, ठीक है। तो ये है वो जो है जिया अल आलाता, मफलूकुल हाल भूखे, उनको जनाब मिल जाएगी, स्टेटस मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगी, लोगों के लीडर हो जाएंगे। फज़ालिका मिन मआलिम अस्साअ, और ये है क़यामत की निशानियों में से, व अशरातिहा, और उसकी निशानियां। क़ाला या रसूल अल्लाह, तो जिब्रील ने कहा ए रसूल, वमन अस्हाबुश्शाई वल हुफातुल जियाउल आलतु, और लोगों ने पूछा या उन्होंने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, ये लोग बकरियों वाले कौन हैं, नंगे पांव, भूखे और मफलूकुल हाल? तो काला अल अरब, अरब। चलिए, अब देखिए, मेरा ख्याल है कि हदीस बड़ी वैसे मशहूर है, नहीं ठहरिए, अभी ठहरिए, अभी हम इस हदीस को थोड़ा सा इसके पर तवज्जो करते हैं। तीन निशानियां रसूल ने बताई कि एक तो लौंडी अपनी मालकन को अपने मालिक को जानती है, इसका जो मतलब हमें समझ आता है कि औलाद ऐसी माँ बाप के ऊपर हुक्मरान हो जाएगी कि ना माँ बाप औलाद के सामने शर्मिंदा ही नहीं। क्या एक ये सच सी दुनिया का तरीका है कि बच्चे जो है ना वो औलाद जो बच्चे हमेशा वालिदैन की शुक्रगुजारी है, और ज्यादा उसके ऊपर वालिदैन के ऊपर जो है वो चीखते चिल्लाते नहीं या अथॉरिटी नहीं दिखाते। लेकिन हमारी जनरेशन जी को आप देख लीजिए, जनरेशन जी जो है वो हर वक्त परेशान और नाराज ही रहती है, और उसको उस्तादों से, अपने वालिदैन से, अपने बड़ों से मुस्तकिल ये शिकायत होती है, करके दिया, करके दिया। और ये आप देखिए कि इस शिकायत के साथ आप उनके देखें नफसियाती मसाइल कितने बड़े, वो इतने ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं और इतने ज्यादा जो है वो उनके जो है आप कह लीजिए डिमांडिंग होते हैं कि सच्ची पूछिए कि जिस कोकून के अंदर उन्होंने वक्त गुजारा है उस कोकून से बाहर निकलना और सही दुनिया का मुकाबला करना उनके बस की बात ही नहीं। तो वो हर वक्त शिकायतें ही आपको दिखाए रहते हैं, या हमें हर वक्त खबरें नहीं मिलती, वो साइबर आप फलाने किसी कर ये हुआ तो फलाने अपने आपको नुकसान पहुंचा लिया, ये हुआ तो फलाने की कर दिया, वगैरह वगैरह। और आप ये देख लीजिए कि ज्यादातर केसेस कहाँ पे मिलते हैं, ये हमें अमीरों के, गरीबों के भी घरों में वो हालात नहीं रह गए, गरीब भी अभी भी अपने हालात को बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन अमीरों के घरों का तो ये है कि आप समझ लीजिए कि वो बच्चे की छोटी सी उंगली के गिर्द जो है ना पूरे के पूरे माँ बाप जो है वो समझे के बंधे हुए भागे। दूसरी बात अलग है के बकरियां चराने वाले, तो कौन है ये बद्दू है, ये अरब के बद्दू हैं, ये सारे गल्फ कंट्रीज को देख लीजिए, ठीक है। आपको मैं बताऊं सीरिया और इजिप्ट वगैरह के अरब ऐसे नहीं, ठीक है, ये खास तौर पे ये बद्दू, और ये बद्दू जो है अभी ये 60 की दहाई में निकला है ना तेल, जैसे ही तेल निकला तो एकदम आप देखिए कि रियासतें कहाँ से कहाँ चली, दुबई चलो, याद है एक मूवी एक आई थी आज से में आई थी, और जनाबे वाला आप उसके बाद आप ये देखें बुर्ज खलीफा है, फिर मारते हैं,
اور کیا ہے کہ وہ اب جو न्यू सिटी है वो एक और बंडर है वो बनाया चाहते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बकरियां चराने वाले कभी इनके दरमियान बैठ के देखे, ये भी अभी भी बकरियां चराने वाले हैं। आप जल्दी कीजिए जरा सामने कीजिए, अभी भी ये बकरियां ही चराने वाले हैं। इनका आप कभी अरबों का खाने का तरीका देखें ना, ये हम लोग तो चावल को हम लोग भी हाथ से खाते हैं, लेकिन हम उंगलियों से लुकमा बनाते हैं। ये लोग अभी भी चावल को पूरा हाथ में पकड़ के ना और उसको जनाब ऐसे करके खाते हैं, बहुत ही सिंपल है। और इनके अभी भी जो है ना, ये ठीक है इनके पास बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स और बड़ी बड़ी गाड़ियां और होता है, लेकिन उनकी अपनी जाति जिंदगी इसी तरह जमीन पे बैठने वाली बड़ी सादगी है, उनको के साथ आज भी उनको वैसा ही प्यार है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये जो है ना, ये बकरियां चराने वाले कई इमारतों के ऊपर फखर करेंगे, और फिर फरमाया कि भूखे नंगे, यानी वो कमीने लोग वो जो माशरे की जो निचली वाली सोसाइटी का हिस्सा होते थे, वो लोगों के लिए बन जाएंगे। तो क्या हमें समझ नहीं आती? आप ये देखिए कि कुछ अर्सा पहले जो निराशी हुआ करते थे, ठीक है ना, ये लोगों के ऊपर गुजारा करते थे, लोगों की खैरात के ऊपर, लोगों के सदकात के ऊपर। और होता क्या था कि बात इतना है कि बातें करते थे लोगों को हंसा लिया, ठीक है। जब ये लोगों को हंसा लिया करते थे, तो आज वही वाले निराशी जो है वो सारे के सारे अदाकार। और आप देख लें, जो अदाकार खड़ा होता है, जो क्रिकेटर खड़ा होता है, वो जो है ना, मैंने किया उसकी सीट जीत के खड़ा हो जाता है। तो क्या है कि ये लोगों के सरदार। तो लोगों ने उसके बाद पूछा, उन्होंने पूछा है, किसने पूछा? जिब्राइल ने पूछा कि ये कौन होंगे? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल। अच्छा, ये समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ये कौन लोग के? एनीवे, अल्लाह के रसूल ने बताया ये अरब, यानी खास तौर पर आपने उन अरब, अरब के वासी थे भी और होंगे भी। और सबसे बड़ी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुंबे कबीले के लोग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हीं में से। और ये है कि जो जजीरा नुमा अरब है, इसको आप देखिए, इनको गल्फ कंट्रीज कहते हैं। ये पहले इकट्ठे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, बहरेन, कतर और कुवैत के इलाके जो थे, ये इसी अरब का हिस्सा ही, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि बाद में जब ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन खत्म हुआ, तो उन्होंने छोटी छोटी रियासतों में बांट दिया। एक कतर, कुवैत है, एक बहरीन है, ओमान है, और सऊदी अरब है, अरब मुत्तहिदा अरब इमारात है। चलिए ऊपर चलता, अब नेक्स्ट वाली। अच्छा, हदीस नंबर ये 3566 है। अन तारिक इब्न शिहाब, तारिक बिन शिहाब से रवायत है, काला कुन्ना इंद अब्दुल्लाह जुलूसन, हम अब्दुल्ला के पास बैठे, ठीक है। फजा और एक आदमी आया, काला कद उक़सिमत इस्सलाह फकामा वकुमना माअहू फलम्मा दखलना अलमस्जिद रअयना अन्नास रुकूअन फी मुक़द्दमिल मस्जिद। कहते हैं कि हम बैठे हुए थे, घर एक आदमी ने आके कहा कि देखो इकामत कही जा सकती चुकी है। तो हम वो खड़े हो गए और हम खड़े हो गए, अब्दुल्ला जो वो खड़े हो गए। सॉरी, मैंने उक्सीमत कहा है, ये उकीमत है। कद उकीमत इस्सलाह, यानी नमाज के लिए इकामत कही जा सकती चुकी है। तो अब्दुल्ला खड़े हुए, हम भी उनके साथ खड़े हो गए। फलम्मा दखलना मस्जिद, जब हम मस्जिद में दाखिल हुए, रअयना अन्नासा, तो हमने लोगों को देखा कि वो रुकू में थे, फी मुक़द्दमिल मस्जिद, मस्जिद के सामने, मस्जिद के अगले हिस्से में वो रुकू थे। फकब्बरा वरका रकाना सुम्मा मशियन, तो उन्होंने तकबीर कही और रुकू कर दिया, और हमने भी रुकू किया, और फिर हम साथ चल के ना आगे सब के साथ जाके, यानी लोगों को रुकू में देखते हुए वहीं से उन्होंने अल्लाह अकबर कह के रुकू में चले गए, और दो कदम चल के आगे सब में जाए। वसनअना मिस्लल्लज़ी सनअ फमर्र रजुलन युसरिउ फक़ाल अलैका सलाम या अबा, कहते हैं हम इसी तरह हमने, यानी सब पे पहुंचने से पहले से हमने रुकू किया, फिर और फिर जैसे उन्होंने किया हम करते ही, अब्दुल्ला ने किया तो हम भी ऐसे करते रहते। एक आदमी जल्दी में कहने लगा, अबू अब्दुर्रहमान अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल ने सच कहा, ठीक है, देखिएगा। तो फ़क़ाल सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और उसके रसूल ने सच कहा। फलम फसम्मा सल्लैना व रजअना दखल अलैहि, फिर क्या हुआ कि जब हमने नमाज पढ़ ली तो वापस आ गए। तो वो क्या हुआ, अपने घर के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर चले गए, अंदर चले।
जलसना हम बैठ गए, फकाल बादुना लिबाज़िन, तो हम एक दूसरे से बात करने लगे, अम्मा समिअतुम रद्दहु अला रजुल सदक़ल्लाह व बलगत रुसुलह अय्युकुम यसअलुहु फकाल। अच्छा, कहते हैं कि हम बैठ के और एक दूसरे के कहने लगे कि तुमने सुना वो जो उन्होंने इस आदमी को जवाब देते हुए कहा था कि अल्लाह ने सच कहा और उसके रसूलों ने उसका पैगाम पहुंचा दिया, तो तुम में से कौन है जो उनसे इसके बारे में सवाल करे। यानी वो क्या बातचीत थी, किस आदमी ने उनको ये बात कही, और वो यानी किस क्या वो किस्सा क्या था, कॉन्टेक्स्ट क्या था। अब ये अब्दुल्ला जो है ये इनकी शख्सियत बहुत बड़ी है और लोगों को मुश्किल लग रहा है सवाल करने के। अय्युकुम यसअलुहु, तुम में से कौन है जो सवाल करेगा। फकाला तारिक, उन तारिक कहते हैं कि मैं पूछता हूँ। फसअलहु हीन खरजा, और फिर कहते हैं कि पूछा जब वो बाहर निकले। फज़कर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिक्र किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। अन्ना बैन यदै साअती, के क़यामत मेरे सामने है, तस्लीम अल खासती व फुश तिजारती हत्ता तुईन अल मरअतु ज़ौजहा अला तिजारती व क़त्अ अल अरहमी व शहादत अल तज़ूरी व कितमानी शहादत अल हक़ी व ज़ुहूरिल कलम। चलिए जी देखिए, उन्होंने इस आदमी को, अच्छा जी, मैंने सवाल किया तो उन्होंने जवाबन कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत से पहले मखसूस लोगों को सलाम किया जाएगा और तिजारत आम हो जाएगी। अच्छा, ये मखसूस लोगों को सलाम की क्या मतलब है कि हम सिर्फ उन्हीं को सलाम करेंगे हम जिनको जानते हैं, सलाम करने का रवाज ही नहीं रहेगा। ठीक है, बस इतना है जिनके साथ ताल्लुकदारी होती है उनको कर लिया करें, जो नहीं करें, और तिजारत आज आम हो जाएगी। और दूसरी बात ये कही कि जो औरत है ना, वो अपने शौहर के काम में, तिजारत के काम में उसकी अपने शौहर की मदद करे। औरतों की जॉब्स है, कितनी कितने परसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेडीज, फीमेल्स, ये हम आज की जो हमारी इकोनॉमी है, उसको देखा क्या जाता है, जो उसके केपीज आईज है ना, जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, उनके मुताबिक जो है एक औरत जो है वो उसको अगर इतनी औरतें एक जगह पे होंगी, औरतों के लिए कोटा मखसूस होगा बाजार में, मार्केट में, तो समझा जाएगा कि इकोनॉमी सही है। ठीक है ना, तो औरत अपने खामिन की मदद करेगी, नीज कतई रहमी और झूठी गवाही, रिश्तेदारियों का ख्याल खत्म। अच्छा देखिए, कुछ देर पहले आप देखिए होता था कि बड़ी अपनी बरादरियों का पता होता था, लोग अपनी बरादरी की शादी करते थे, लोग बरादरी के साथ लेन देन रखते थे। आज आप देखिए कि ये चीजें मेरा ख्याल बिल्कुल ही आगे पीछे हो गई। ठीक है ना, बिल्कुल किसी को भी इसकी नहीं होती है खानदान वगैरह का। मैं इसको बुरे या अच्छा है कि मैंने भी नहीं कह रही, लेकिन एक बात जरूर है कि पहले लोग बड़ा जितना इसका बरादरी से ताल्लुक है, और अब जो है बात की। दूसरी बात है सच्ची शहादत को छुपाना, यानी गवाही छुपाना, यानी झूठ आम हो जाएगा। तो हमारी अदालतों में क्या होता है, गवाह जो अदालतों के गवाह है, आपको पता है थोड़े से पैसे लेके गवाही देते हैं और गवाही पहले कोई उठा के देते हैं, और लिखाई पढ़ाई भी आम हो जाएगी। अरे ये कितनी अजीब बात है। वज़ुहूरुल कलमी, पढ़ना लिखना आम हो जाएगा, ये नहीं था इल्म आम हो जाएगा, पढ़ना लिखना आम हो जाएगा। देख लीजिए कितने लोग जो है वो पढ़ने से वाकिफ है, और तो और मैंने देखा है, अब तो वो तबका जो पहले हमारे यहाँ लिटरेट इलिटरेट समझा जाता था, वो भी आप आराम से देखें कि मोबाइल की इंग्लिश, उर्दू, अरबी वगैरह वो सब लिख लेता है और वो मोबाइल पर सारा काम कर लेता है। ठीक है ना, तो अल्लाह के रसूल ने बताया कि कलम जो है वो दहूर यानी पढ़ना लिखना। चलिए जी अगली हदीस पे, ये क़यामत की निशानी से। अच्छा जी, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त के सारे अमूर सारे हो चुके हैं। चले, अन अबी सईद अल खुदरी, अबी सईद अल खुदरी से रवायत है, काला अद्दद दिबु अला शातिन फअखज़हा फलतबहु अर्राई फंतज़अ मिन्हु फअक़अद दिबु अला ज़ंबिही काला अला तत्तक़िल्लाह तंज़अ मिन्नी रिज़क़न साक़हुल्लाहु इलैया फ़क़ाला या अजबी ज़िअ्बु मुक़इन अला ज़ंबिही युकल्लिमुनी कलामल इंस फ़क़ाल ज़िअ्बु अला। अभी पढ़ते हैं इसको, पहले इसकी तरह तर्जुमा कर। अभी सईद खुदरी कहते हैं कि हुआ क्या कि
एक जो था ना, आदत यानी अद्दा का मतलब होता है कि हमला, जिब जो होता है, भेड़िए ने ना एक शाद बकरी पे हमला कर दिया और उसको पकड़ लिया। फला तबाहु, तो क्या हुआ कि चरवाहा जो पीछे भागा, ठीक है, और उसने उसे बकरी छीन ली। भेड़िया पिछली टांगों को जमीन पर फैलाकर अगली टांगों को खड़ा करके अपनी दुम पर बैठ गया और कहने लगा, तुझे अल्लाह से डर नहीं आया? अल्लाह ने मुझे रिस्क अता किया था, तूने वो छीन लिया मुझसे। चरवाहा कहने लगा, अजबनी या अजबी, बड़ी अजीब बात है। ज़िबु मुक़िन अला दम्बिही युकल्लिमुनी, कि अव्वल तो ये जो है, ये भेड़िया अपनी दुम पर बैठा है और बात भी मेरे से इंसानों की तरह कर रहा है। इतने में वो भेड़िया और चरवाहा फिर बोला, ठीक है, और कहने लगा कि मैं तुझे इससे भी ज्यादा अजीब बात ना बताऊं। चलिए पहले हदीस पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अला उखबिरुका या अजब मिन ज़ालिक, बि अजब मिन ज़ालिक, मैं तुम्हें इससे भी अजीब बात बताता हूँ। मोहम्मदुन रिबा युखबिरु युखबिरु नासा बि अंबाई मा कद सबक, قال فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة الجامعة، ثم خرج فقال للراعي أخبرهم، فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق والذي نفسي بيدي لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع، थोड़ा सा नीचे कीजिए، हत्ता युकल्लिम अस्सबाउ, आखिरी लाइन जो है नजर नहीं आ रही, हत्ता युकल्लिम अस्सबाउ इंस फयुकल्लिम अर्रजुलु अज़बतु सौतिही वशिराकु नअलिही वयुखबिरहु फखिदहुहु बिमा अहदथ अहलुहु बादा। चलिए देखिए, अच्छा जी, अब हुआ क्या कि वो जो भेड़िया है उसने चरवाहे से कहा कि मैं तुझे इससे भी, भेड़िया फिर बोल पड़ा, कहने लगा इससे 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 भी अजीब बात है बताऊं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो यसरिब में यानी मदीना में आ चुके हैं और जो हो चुका है उसकी खबरें बताते हैं। ये सुनकर चरवाहा जो है वो अपनी बकरियों को हाँकते हाँकते मदीना में दाखिल हुआ। उसने बकरियों को किसी गोशे में जमा किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत हाल से आगाह किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि लोगों को जमा करने के लिए अस्सलातुल जामिया, अस्सलातु जामिया, नमाज के लिए इकट्ठे की सदा बुलंद की गई, लोग जमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के पास तशरीफ लाए और सरवाहे को सारा वाकया बयान करने को फरमाया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरवाहे ने सारा वाकया बयान किया होगा, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, इसने सच कहा, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कयामत के बर्पा होने से पहले दलील से बातें करेंगे। अरे चलिए मैं आपको बता चुकी, कहते हैं कि ये जो एआई है, इमोशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके जरिए जो है ना परिंदों की और जो है ना जानदारों की जो है ना बातों को समझा जा सकता है। डिकोडिंग, भला कैसे? सिंपल एज दैट, चलिए मैं बता दूं कैसे। आप ये बताइए कि हम सबको पता है कि मोबाइल में ऐसी एप्स हमारे पास मौजूद है, मैं उर्दू को और वो जो है ना उसका जो है अरबी तर्जमा या वो जो है वो करके दिखा दे। और क्या है कि पूरी दुनिया इस वक्त इस पे कम्युनिकेशन कर रही है, मेरे आसपास बहुत ढेर से नेशनैलिटीज के लोग हैं, इतनी एक दूसरे से बातें करते हैं। मैंने पूछा कैसे, तो वही ये वाली एप्स के जरिए। अच्छा, अब इन्हीं एप्स के साथ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस बात को कर दिया है कि जो है ना हम जानवर की जो है वो जुबान समझ जाते हैं। हो भी सकता है कुछ अरसे के बाद हम होता है कि पौधों की भी जुबान समझने लग जाए। अच्छा, जुबान की भी बात समझ, आज मैं आपको बताऊं जुबान क्या चीज है। कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन में एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है और एक दिमाग में थॉट। ये जो थॉट सिर्फ लफ्जों के जरिए इंसान की बॉडी लैंग्वेज के जरिए तक पहुंच रही होती है, ठीक है, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। अच्छा, जो तो कम्युनिकेशन है ना इंसानों की, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो जो कम्युनिकेशन है ना जानवरों की, वो सिंपल है। मैं सादी सी आपको मिसाल देती हूँ बादल के बारे में। आप ये कहें, बादल की जो दो या तीन एक्सप्रेशन है ना, ज्यादा जोर से गरजा तो इसका मतलब कि बिल्कुल बरसने वाला है, जरा दरमियाना सा गरजा इसका मतलब, ठीक है, उससे भी ज्यादा हुआ तो उसका कुछ और मतलब होगा।
आप समझ रहे हैं? स्क्रीन शेयर कीजिए। अच्छा जी, ये 2 या 3 बस एक्सप्रेशन हैं और इसके साथ जो है वो बादलों के बारे में हमें पता चल जाता है। बहुत सारी चीजें जो है बादलों के बारे में जानने के सारे वेदर के जो रूल्स होते हैं वो इसी तरह से कि जो है वो जान लेते हैं कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसके साथ जो प्रेडिक्शन होते हैं। जरा सा इस बात को आगे से समझिए। इसी तरह आप ये देखेंगे कि जो हमारे यहाँ आज से पिछली सदी में टेलीग्राम और वो जो होते थे, वो क्या होता था, एक टेलीग्राम होता था और एक और मैसेजेस भी आया करते थे। अच्छा, ये जो है ना वो जो रेलवे के ऊपर लोग जो है ना वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के ऊपर हवा भेजा करते थे, वही सारी चीज जो है ना आज डेवलप होगी कंप्यूटर की शक्ल में। अगर हमें पता है ना कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसके 2 ही यूनिट्स हैं, एक जीरो और एक वन। जीरो और वन के ऊपर आप देखिए कि पूरी की पूरी जो है ना कंप्यूटर लैंग्वेज की जाती है। तो क्या इसके साथ आपको समझ आती है कि जानवरों की जबान भी जो है वो इंसान समझ लेगा? और हो भी सकता है कि इतना इंसान माहिर हो जाए समझने में। आज तो जरा कंप्यूटर की कोडिंग पढ़ने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है ना, पहले थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो जब एक चीज हद से ज्यादा आम हो जाएगी तो शायद सारे लोग कर। तो मुझे तो ये चीज लगती है कि ये बिल्कुल हो चुकी है, बल्कि मैं इसको ये भी नहीं कहूंगी कि नहीं होने वाली है, मैं इसको ये कहूंगी कि ये हो चुकी है। ठीक है। बाकी इतना ध्यान रखिएगा कि इंसान जज्बात, एहसासात, शायरी और ये वाली बातें कम्युनिकेट कर रहे हैं। जानवरों में और दूसरी मखलूकात की जो जुबान है सिंपल होती है। जानवरों की फिर कॉम्प्लेक्स होगी, ठीक है, लेकिन इंसान के मुकाबले ये भी बहुत सिंपल। चलिए जी। अच्छा जी, थोड़ा सा पहले वाली पिछली वाली स्लाइड हदीस पे आई। हदीस का एक हिस्सा है जो सामने आ रहा है, आइएगा जरा पीछे। ये नहीं, पीछे आइए हदीस के शुरू। अच्छा जी, अच्छा बस बस बस, बस। अरे रुको रुको। अच्छा जी, और ऊपर और ऊपर। अच्छा जी, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। हम यहाँ पे पढ़े थे बस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस चरवाहे ने सच्ची बात कही है। अब उस जात जिसके हाथ में मेरी जान है, यानी अल्लाह की कसम, कयामत कायम ना होगी हत्ता कि जो है ना दरिंदे, सुबह सबा बोलते हैं दरिंदों, इंसानों से बातें करके वकल्ली मर राजूला, और इंसान से बात करेगा अदबतु सऊती ही, उसका कोड़ा, जो हाथ में वो सोटी नहीं पकड़ी होती, वशिराकु नालिही, और उसके जो है ना जूते का तस्मा, वयुखबिरुहु, और उसको खबर देगा, फखिदहु बिमा अहदथा, और उसकी जो है ना ये रान, वो उसको उसके घर वालों की बात बताएगी बाद उसके बाद। अच्छा, ये वाली बात की तो मुझे ही नहीं, अल्लाह और उसके रसूल ने सच कहा और मुझे बात की भी समझ आ रही है। लेकिन ये है कि इंसान का कोड़ा उससे बात करे और इंसान के जूते का तस्मा उससे बात करे, और उसकी रान उसको खबर दी है उसके घर वाले। रान की खबर भी मुझे समझ आती है। आप ये देखिए कि वो जो मोबाइल होता है वो हम अपनी बैक पॉकेट में रखते हैं ना, ठीक है। तो अगर इसको क्या जो फ्रंट पॉकेट में रखते हैं मर्द को, आप इस पॉकेट में रखते हैं, मुझे तो अब यही लग रहा है। लेकिन अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानता है कि उससे उनकी मुराद क्या है। तो लेकिन ये जो बात है ना कि कोड़ा उससे बातें करेगा और जो है ना उसका जो है जूते का तस्मा उसे बातें करेगा, पता नहीं अब क्या चीजें हैं। अब तो इतनी ढेर सारी चीजें आ गई इसकी आई है। आईफोन की जो वॉच, इसकी एप्पल की जो वॉच है, अब आप ये देखें वो आपके कदम है, आपकी नब्स है, आपकी वो इतनी ढेर सारी चीजें हैं। शायद भी ये एक मीन ऑफ इंफॉर्मेशन बन ही जाएगा। चलिए आगे आइए, अगली हदीस पर। वैसे खत्म हो गया टाइम, मेरा ख्याल है बस नहीं, टाइम खत्म हो गया 12 का। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि हम इसका हक अदा कर सके। और प्लीज क्वेश्चंस भी पूछिएगा और इसको अटेंड भी कीजिएगा। तो मैं खत्म करती हूँ। सुबह यस, आपने भैया क्या बात कही, समझ नहीं पाई क्या कहा। खलजान, लेट्स एंड द क्लास, योर वॉइस इज अन। चलिए, कोई बात नहीं, चलिए जी सुहान, मैं खत्म। सलाम।